So let's begin with the next one, that is cell wall. The another major component for the cell. Definitely the first layer, if you talk with respect to the plant cell and some of the microorganisms also. Okay, so fine. So फर्स्ट लेयर है एनिमल सेल को छोड़कर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, इवन फॉर फंगस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. सो सेल वॉल आप पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, इट डजंट मैटर्स. ओके, आफ्टर एंड ऑल यू हैव टू स्टडी दैट सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है. But major thing regarding the cell wall and cell membrane is their differences. Okay, so the thing where cell wall is present, let's see that what important thing it is having in its structure and how it is performing all the functions and all that. So see to this that if we talk about cell wall, first of all it is non-living, a contrast to the plasma membrane. The plasma membrane is the living covering of the cell. Okay, while this one is the non-living outermost. Definitely, as I have talked for some of the living organisms, and very rigid in nature. Okay, very rigid, very hard. Okay, and provides protection, provides the particular shape to the cell, protection against the mechanical damages and infections and all that. So that is the basic function for the cell wall. Okay, that part we have to study. But the thing is, regarding the cell wall, if we see, it leads to a different type of compositions when we talk about the different organisms. That is very important regarding the cell wall. सेल वॉल सभी में एक जैसा नहीं है सेल वॉल ही, बट इट इज मेड अप ऑफ so many components in it that makes it very interesting if we talk about a particular type of organism. Okay, so see to this that first we have the algae, the algal cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and calcium carbonate. Okay, so one of the important constituent of the algal cell wall. Then फंगस, फंगल सेल वॉल बेटा उसमें भी सेल्यूलोज वगैरह सब कुछ होता है, बट एक्सेप्शन इज दैट इट हैव अ स्पेशल पॉलीमर दैट इज कॉल्ड चिटिन. काइटिन बोलते होगे आप लोग, ठीक है, यू कैन से काइटिन ऑल्सो, चिटिन इज ऑल्सो राइट. So chitin is present in fungus and that makes the fungus very what we say a tolerable organism in the environment. ठीक है, ये particular component की वजह से fungus can survive thousands of years in the particular environment without means losing any type of viability in it. ठीक है, इतना ज्यादा वो फंगस को स्ट्रांग बनाता है कि जो फंगस आज ग्रो हुआ है वो इस पर्टिकुलर प्लैनेट पर 1000, 2000, 5000 ईयर्स तक भी सरवाइव कर सकता है. ओके, एंड द थिंग इज ये चिटिन ऐसा पॉलीमर है दैट मेक्स द फंगस a very what we say, it can tolerate any type of seasonal or the environmental change very easily. और फंगस के लिए बहुत इजी है ये सारी चीज़ें सरवाइव करना. जो सडन टेम्परेचर चेंज हो, अगर देर इज अ मैकेनिकल डैमेज ऑफ सर्टेन टाइप, they can survive all of them very easily. That makes fungus very interesting and that makes fungus very crucial when you talk about the certain type of things. Right now, nowadays you are hearing about the black fungus, white fungus, cream fungus, pink fungus. There are severe of list of funguses are being arriving nowadays. Okay, and it's all because must have heard ki by those who are having the present scenario of the COVID, they are very much sensitive to have the infection of the fungus. It's
लाइक जस्ट अंडरस्टैंड दैट जब भी कोई भी अगर ऑर्गेनिक चीज इट स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग, ठीक है, जब वो खराब होना या सड़ना शुरू करती है, कोई भी एक चीज हो सकती है, वो आपके ऑर्गन्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फूड हो सकता है आपके घर में, एनीथिंग, whenever it deteriorates, the fungus is going to grow over that place, and that is truth. आप जो हम घर में, आपके घर में अगर लेदर की चीजें हैं तो उस पर फंगस बहुत इजीली लग जाता है, नो मैटर हाउ क्लीन यू कीप द थिंग्स, ओके। एंड इफ वी से, if you have this, what we say, if you keep the food material open at your home, जैसे कि जो रोटी वगैरह जो है, ब्रेड है, रोटी है, if you keep it for a certain duration, then it shows the fungal growth, okay. So fungus is all over there in the naturally present in the environment, and it is present in the form of spores. सबसे बड़ी उसकी खासियत यह है कि वो स्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। स्पोर्स मतलब फंगस के ऐसी स्टेट जो एनवायरनमेंट में हमेशा रहती है, एंड मोमेंट इट फाइंड आउट कि हाँ भाई अब बहुत सुटेबल मुझे जगह मिल रही है ग्रो होने के लिए, देन इट स्टार्ट्स ग्रो, okay. So that's why this chitin is very a huge topic of research for the scientists, those who are working on it, okay. So that is about the fungus. Then you have the plant cell wall, okay. So plant cell wall definitely हम हमेशा जो आप क्लास 5 से सेल्स ड्रॉ करके आ रहे हो, तो प्लांट सेल के आसपास सेल वॉल इज द मैंडेटरी वन, and you know that you must have drawn it thousands of times, but see that uh, how it is made up of, and what is the important component of these cell walls. So basically cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectins, proteins, all these are the polymers which makes up the cell wall, okay. But अगर आप young plant cells की बात करते हैं, so it is heavily made up of cellulose. Definitely the other components will be there, but the major one will be the cellulose, okay. Then you have, if you have two cells with you, then these two cells will be sticked together with a cementing material, and that is called middle lamellae, okay. That is called middle lamellae, which is present between the adjacent primary walls of the cell, and it is made up of calcium pactate. ये जो filling होता है, it is made up of calcium pactate in plants, okay. While if you talk about the secondary cell wall का मतलब होता है जब प्लांट जो है वो एडल्ट हो गया है, एजेड हो गया है, एंड these particular cells basically die. जब यंग सेल्स होते हैं वो अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करने के बाद जब उनकी डेथ इज समवेयर नियर, then the secondary cell wall will be formed, and that will be formed, how it will be formed is nothing but the, ये प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन हो जाएगा किसका, हेमीसेल्यूलोज का, लिग्निन का एंड सुबेरिन का, ऑल दीज थिंग्स ये सब डिपॉजिट होना शुरू करते हैं, एंड दैट मेक्स द सेकेंडरी सेल वॉल वेरी हार्ड, टफ एंड थिक, ओके. सो that's what you have to understand regarding the cell wall. अच्छा, Simran, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, fine. You are new to the class. I'm just you. I think आप अगर follow नहीं कर पाते हो मेरे language को या किसी चीज़ को, just let me know, because the thing is we are just going with the in the flow. We have the previous classes, okay. So if you don't follow anything, just let me know. I will just get back to you accordingly. Understand? Okay, fine. और फर्स्ट आपका अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा है बेटा बायो में? Ma'am, I have almost complete.
I'm not getting you. Have you studied anything in biology? Have you, or you have just started with bio? Ma'am, Fine. I think network issue is there. I'm not getting what she's saying. Okay. No worries. Okay. So just see to this that हम प्लांट सेल वॉल्स की जब बात करते हैं तो ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, ये सारी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स, सो ऑल दीज आर द पॉलीमर्स। ये सभी चीज़ें हैं वो क्या है एक्चुअली, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ सम special organic molecules, and they are forming this particular structure, helping out in forming that particular structure. That is what you have to understand. Okay, and you have the plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसा चैनल है जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है. सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर समथिंग दैट इफ यू हैव अ सेल विथ यू, आपके पास दो सेल्स हैं, सपोज लाइक दिस, इफ यू हैव टू सेल्स विथ यू neighboring to each other, so how they will be interconnected? वो अपनी सारी चीज़ों का interconnection कैसे follow करेंगे? So this is a cell wall they have, then definitely they will be having a cell membrane. Okay, उसके बाद उनके अंदर cell membrane की presence होगी, and then they have a huge amount of cytoplasm fluid present होगा. ओके, सो ये साइटोप्लाज्म जो है दोनों सेल्स का, दे इट शुड रिमेन कनेक्टेड टू ईच अदर. सो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसा चैनल है
Hello. Yes, ma'am. Is it coming? Yes, ma'am. This is hanged. Oh, wonderful. Okay, so the two cells, if I say, they will be connected with each other, वो connected रहते हैं, and their cytoplasm will be in continuous contact with each other. सॉरी, मैं यहाँ पर अगर रफ करती हूँ तो ये शायद पूरा रफ हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस, but this is how it is continuously in exchange, and this region which forms the bridge between the two neighboring cells, that is called plasmodesmata. उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके बनता है, so that's why it is called plasmodesmata. And that ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मोडेस्मेटा है, ये जितने भी सीरीज में सेल्स होंगे, 1000, 10,000, 50,000, लैक्स ऑफ जितने भी सेल्स हैं, सभी आपस में ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? मैम मतलब एक कनेक्टेड रहेगा मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग बेटा. मैम दोनों सेल जो कनेक्टेड रहेगा मैम, एक तो सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहेगा और एक तो सेल वॉल के साथ. नो, एक्चुअली इन दोनों के बीच में ये ओपनिंग रहेगा बेटा. दिस वॉट एवर आई एम ड्रॉइंग, सी मैं रफ करूंगी ना तो शायद पूरा ही रफ हो जाएगा यहाँ पे. देखो तो अभी मैं वापस ड्रॉ करती हूँ इसको. Can you see this? Yes, ma'am. Okay, so actually if you see internally, then the cells are not like boxes. वो एक क्लोज्ड बॉक्स की तरह नहीं है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, एंड दिस इज हाउ वॉट एवर सेल्स यू हैव, आपको यहाँ पर जो भी सेल होगा, इसके आसपास इधर सेल है, इधर सेल है, यहाँ सेल है, वो सभी के सब प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू लिंक्ड है. अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Okay, so it's not like only the corresponding मतलब राइट साइड वाला ही कनेक्टेड रहेगा या एक सीरीज में. whatever cells they are having, whatever types of cells they are surrounded with, all of them are connected with the help of plasmodesmata. That means a connection which provides the network between the cytoplasm of the two neighboring cells. एंड ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, तो ये जो है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दैट कि अच्छा नेक्स्ट नेबरिंग सेल के पास कौन सा न्यूट्रिशन लैकिंग है, वॉट एवर द वाटर रिक्वायरमेंट इज, if there is an infection, how the cell is at particular stage. So that is how the cells are connected to each other for with the help of this plasmodesmata. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay, so that is what this is how you should understand. So basically जैसे हम draw करते हैं normally that we are drawing cells like this if they are connected to each other, and we say osmosis, diffusion और ये सारी processes से exchange होते हैं. Definitely exchange उसी तरीके से हो रहा है, but the thing is all of them will be having the interconnected passages that leads to the exchange of the cytoplasm in them. Okay, so that's why it is and these plasmodesmata are the electron microscopic structures. You cannot see them through the
compound microscope or 100x, or that's how you cannot observe them. They are purely through, only through the electron microscope it was identified कि अच्छा ऐसा भी कोई connection cells के बीच में होता है. Is this part is clear, Noida? Yes, ma'am. Okay, so that's what you have to understand regarding the cell wall. Okay, is this part is done? Yes, ma'am. सो फाइन, लेट्स सी दैट हम थोड़ा बहुत ये समझ ले, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स, लिग्निन्स किस चीज के पॉलीमर है. सो सेल्यूलोज वी हैव स्टडीड इन बायोमॉलिक्यूल्स के लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज है. 10,000 glucose monomers, when they are interconnected to each other with branching and all that, then it forms the cellulose. And hemicellulose, if I say, it's also a branch polysaccharide with one sugar, that is glucose, and side chains of these particular polymers are made up of xylose, and that makes it hemicellulose. Clear? Okay. Pectins, polymers of galactouronic acid. ठीक है, galactouronic acid is the one which is a monomer means bipolymer, and that leads to the formation of a big polymer when the pectin has to be formed, and negatively charged रहता है, gel like consistency रहता है. And mark this, due to the presence of pectins, many of the infections can be avoided by the cell. सेल जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शन के पेनिट्रेशन से बच जाता है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो पेक्टिन से भी बना हुआ है. जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर फ्लो नहीं कर पाता है इजीली. दैट्स इट. ओके, एंड देन यू हैव लिग्निन. Lignin is a polymer of phenol containing polymer it is, and it is the one which leads to that what we you say that जब आप cells जब dead हो जाते हैं तो इनका deposition बहुत ज़्यादा हो जाता है lignin वगैरह का. Okay, and that makes them bit hard and clear? Ma'am, biopolymers क्या होता है? They are nothing but what we say is that naturally ये जो गैलेक्टोयूरेनिक एसिड है बेटा, ये जो है एक ये कोई सिंथेटिक पॉलीमर टाइप का चीज नहीं है. इट्स नॉट लाइक मींस कार्बन हाइड्रोजन, नॉट लाइक दैट. ओके, टिपिकली वो टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है. So little bit of something on the leaving acid type, that's why it is called biopolymer. Understood this? Okay, ma'am. Okay, so that's what you have to understand regarding the difference between all these. A little bit of difference, क्योंकि एग्जाम्स में बेसिकली नीट में इनके मोनोमर यूनिट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं. सो बेसिकली ऑल दीज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड लिग्निन्स, रेस्ट ऑफ अदर्स आर नॉट बीन आस्क्ड. अगर आपको सुबेरिन वगैरह पूछते हैं तो वो ऑल ऑफ देम आर वैक्सेस एंड ऑल दैट, सो यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Simran, are you getting it? Yes. Good. Is it done? Ma'am, Yeah, sure. You take your time. yes, ma'am. Simran, Yes, ma'am. is it done? Writing part? Ma'am, can you stop? We are writing? Ma'am, take a
The network is too poor. I'm not getting what we are saying. I think she is saying that she has taken a screenshot. Okay, fine. So functions, we know that provides the polyhedral shape to the cell. That means polyhedral means anything. It may be oval, it may be circular, spherical, it may be like this, something pentagonal, polygonal, whatever shape you can say. So polyhedral shape, किसी भी shape का अगर सेल का जो shape है वो पूरी तरह से सेल वॉल पर डिपेंडेंट होता है, because that maintains the turgor pressure inside the cell. वाटर से प्रेशर क्रिएट करता है, दैट्स एंड फॉर्म्स अ स्केलेटन ऑफ द एंटायर प्लांट. अगर एक प्लांट की बात करते हैं हम, तो उसका जो पूरा एक फिजिकल स्केलेटन जो फॉर्म होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल. एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज, डेफिनेटली, और एब्रेशंस और फिजिकल डैमेज, एनीथिंग यू कैन से. एंड इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, सेल वॉल की वजह से ही इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि सेल वॉल है तो बीच में मिडल लैमेला है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा. इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग ऑल द ये जो चैनलिंग प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर सेल वॉल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उससे सारे सेल्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. like if you have seen that अगर किसी प्लांट को, if I talk about certain plant, and if that plant gets the disease, वो थोड़ा सा डिजीज हो जाता है, सपोज अगर उसके स्टेम को या किसी ब्रांच को a little bit of disease type of thing is happening, तो जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, वैसे प्लांट्स में भी एक इम्यूनिटी फैक्टर होता है जो फाइट करता है ये सारी चीज़ों को. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स दैट सबसे पहले ये होता है कि जो भी चीज़ खराब हो गई उसे हटा दो, ठीक है. तो अगर सपोज इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रांच इज गेटिंग डिजीज्ड, आपने अगर प्लांट्स को कभी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो आप देखना कि सबसे पहला जो प्लांट का काम है वो ये डिजीज पार्ट को डिटैच कर देता है. हैव यू सीन इट? Yes. Okay, so detachment is the best way to get rid of the infections and all that. So that is how और वो intercellular communication की वजह से ही होता है. All the cells get the message कि भाई ये वाला पार्ट जो है अब खराब हो गया है, इससे कोई भी किसी भी टाइप का इनटेक और जो आउटलेट जो है वो मैनेज नहीं करना है. तो सारे प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन पे. इस ब्रांच पे जितने भी प्लाज्मोडेस्माटा होंगे, they will block themselves and they will not allow any type of cytoplasmic streaming. मतलब साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को खत्म कर देते हैं. सो दैट्स वाई इतना जो ये पार्ट प्लांट का जो हेल्दी है वो भी आपस में डिजीज्ड नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट हाउ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज बीइंग देयर. इज दिस पार्ट इज Ma'am, all cell wall का structure polyhedral ही होता है. सेल्स का? Yes, cell का. इफ पॉलीहेड्रल का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलीहेड्रल मीन्स एनी शेप यू कैन हैव, राइट? ओवल, it can be circular, spherical, it can be pentagonal, it can be hexagonal, octagonal, heptagonal, rhombus, anything, whatever मैथ के जितने भी आपके शेप्स के टर्म है वो सब डाल दो and you will come to means that is poly. Poly means many shapes. Understood this part? Yes, ma'am. Okay, that's why it is being, and all that's all because of cell. क्योंकि किसी भी अजीब से शेप को वो सेल वॉल ही मेंटेन कर सकता है, अदरवाइज सेल विल बर्स्ट. सेल इतने सारे टाइप के शेप्स को कैसे मैनेज करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Just avoid little bit of spelling mistake is there. I think during typing it must be there. Yes, So ma'am. Copy होगा. covered, done? Simran, done beta? Yes, ma'am. Okay, good. Fine. So next is endomembrane system.
ठीक है. एंडो मीन्स इनसाइड. व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज कॉल्ड एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड मेम्ब्रेनस सिस्टम. हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी मेम्ब्रेनस है. उन सबके अपनी प्रॉपर कवरिंग है, उन सबके अपने प्रॉपर जो एक टाइप का शेप फॉर्म करने के लिए एक लेयर दिया गया है. सो दैट इज वाई, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टडिंग द यूकैरियोटिक सेल, सो वी शुड नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. क्योंकि हर एक ऑर्गेनल जो है वो डिजाइंड है प्रॉपरली एंड इट इज बीइंग covered particularly in particular shape. Okay, so that's what you have to understand. So first of all, endomembrane system जो है वो ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स की वजह से बनता है. वेरी इंपॉर्टेंट. And why it is important, that I have written over here, that forms a dynamic and integrated network, facilitate transport of substance into and out of the cell through membrane bound vesicles. अच्छा, अब आप अगर vesicles and vacuoles ये दोनों वर्ड्स देखोगे, एक्चुअली डायग्रामेटिकली दोनों चीज एक ही जैसी है. यू कैन नॉट मॉडिफाई और यू कैन नॉट, यू आर नॉट एबल टू इवन आइडेंटिफाई दैट विच वन ऑफ देम इज वेसिकल एंड विच वन ऑफ दिस इज vacuum. Okay, so that you have to understand. But very important thing regarding these two is that vesicle is something which is born to transport the material from one place to another. मतलब वेसिकल जो है वो फॉर अ मोमेंट डेवलप होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. नथिंग एल्स इट कैन परफॉर्म. बट इफ यू टॉक अबाउट वैक्यूल्स, सो वैक्यूल्स तो बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं. अंडरस्टूड दिस पार्ट? मैम वैक्यूम जनरली स्टोर करता है मटेरियल. वैक्यूल्स जनरली मटेरियल स्टोर करके रखते हैं. yeah, they store, they also help in maintaining the what you say, that tight shape of the cell. If vacuoles are getting deteriorated, then cell will also. But vacuoles maintain the many of the things like H2O. It also maintains like many of the antibiotics in them. So vacuoles are very important, while vesicles are like they are just born, they will perform a function and then they will go away. Understood this part? Yes. Okay, so that is what you have to understand. And the one which is, we say that last one, peroxisomes, chloroplast and mitochondria are not considered as the part of the system, as they are not coordinated with the system components. Is it clear to you? Peroxisome क्या होता है? Peroxisomes are the one responsible for producing hydrogen peroxide. Okay, Yes. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं. कहाँ हेल्प करते हैं? दैट पार्ट यू विल लर्न एट द टाइम व्हेन यू विल स्टडी द कोर बायोकेमिस्ट्री. पढ़ोगे ना आप जब बेटा प्लांट्स का, तब आपको पेरोक्सिसोम एक ऑर्गेनल की तरह आएगा, तब हम उस चीज को अच्छे से स्टडी करेंगे. एंड इट विल बी इन क्लास 12. आई थिंक इन क्लास 11, बट इट विल कम. अंडरस्टूड दिस? मैम जो इसमें लिखा है peroxisome, chloroplast and mitochondria are not considered as a part of the system and they are not coordinated with the system components. Yes. Meaning of this statement? Yes, ma'am. Okay. So meaning is that they are not, first of all, endomembrane system का part consider नहीं होते, because they work individual. They don't depend on these things, or they are not interdependent on endoplasmic reticulum or Golgi complex and all that. While endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles, they are interdependent on each other for performing their functions. Okay, while these three are like, they are very much independent. They will perform their own function, they will bother regarding their issues only, they will not be dependent on these ones. Is this part is clear? Okay, so that is what is being explained कि भाई ये जो है वो इस सिस्टम का डेफिनेटली उनके पास भी अपने मेम्ब्रेन्स है,
पर वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं आपको समझाऊंगी कैसे काम होता है ये सिस्टम में, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बाकी तीन है उसमें उनका कोई रोल नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू बेटा? ओके, इट्स ऑलरेडी 5:20, 5. Yes, ma'am. Done? Yes. Simran, done beta? Ma'am. Okay. So let's see regarding endoplasmic reticulum. Okay. So एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है. वन इज कॉल्ड रफ एंड अनदर वन इज कॉल्ड स्मूथ. Okay, smooth endoplasmic reticulum while rough endoplasmic reticulum, that means RER and ACR. Okay, so that is a short form. Okay, that is a short form for the ear. So that is what you have to understand. Now basic difference मतलब एक structural difference क्या है और एक functional difference क्या है दोनों के बीच में, that part we will be observing. So first of all, rough endoplasmic reticulum जो है वो rough क्यों है? क्योंकि उसके surface पर राइबोसोम्स की presence है, and that can be seen only under the electron microscope, otherwise that is not possible to observe them. Okay, so है. Okay, so this is how it should be understood, means a basic difference regarding granular and agranular endoplasmic reticulum. Okay, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू टू सी दैट ओके दिस दैट इज कॉल्ड रफ एंड दैट इज कॉल्ड स्मूथ वन. Okay, so that part you have to study, and that is what you have to understand regarding these endoplasmic reticulum. Now first of all किस तरीके से बने हुए हैं. Okay, so if we talk about the rough one, जो रफ वन है वो कैसे है, जैसे आपने वो बलून देखा है बेटा, वो लंबा वाला जो बड़े स्टिक वाला जो बलून होता है, ठीक है, Yes. अगर आप उसमें से पूरा एयर जो है वो बाहर निकाल दो तो वो कैसा फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा. Yes, ma'am. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो वैसे ही टाइप के सैक से बना हुआ है, मतलब वैसे ही टाइप की चीज हो, फ्लैटेंड सैक से, एंड दे आर हाईली कॉइल्ड एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा उसमें कर्व्ड और उससे प्रेजेंट है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन वगैरह कैसे कर्व में प्रेजेंट है, सो दैट इट कैन gain the whole surface area and for that absorption and all that. Similarly rough endoplasmic reticulum भी है, वो flattened sacs है जिनको हम सिस्टरने बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनको हम बोलते हैं सिस्टरने. these cisternae are the one like means if it is a flattened sac you can see them like this. Understood this part? Yes, ma'am. Okay, so they are flattened and they are very much highly having a good network inside the cell. Now if we talk about smooth endoplasmic reticulum, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सैक्स हैं वो फ्लैटेंड नहीं है, वो टिब्यूलर है, मतलब अगर आप एयर फिल कर दोगे और फिर उसके बाद फोल्ड करोगे ना बेटा, बस उस तरीके से. So they are bit tubular while this one is little bit flattened in nature. Okay, and function, ये आपको अभी ये चीज समझना है बेटा कि जहां पर भी राइबोसोम्स है सेल में,
उस जगह पर प्रोटीन सिंथेसिस 100% होना ही है, कैसे भी होना है लेकिन होना है, ठीक है। सो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसके सरफेस पर अगर ये पर्टिकुलर राइबोसोम्स की प्रेजेंस है, सो दीज राइबोसोम ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोटीन्स एंड जो what do you say, they manage to make up a little bit of raw protein from them, ठीक है। और वो सारा का सारा रॉ प्रोटीन जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, गोल्गी बॉडी को, कि भाई अभी मैंने सब मैटर रेडी कर दिया है, अब आप देख लो कि क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो जो सिस्टम है आपस में कनेक्ट करेगा एक दूसरे से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीजें सिंथेसाइज होती है वो कभी भी सेल को डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है, वो सीधा पहले किसके पास जाएंगी, गोल्गी बॉडी के पास। वो रफ से बन रही हो या स्मूथ से बन रही हो, दे हैव टू गो फॉर देयर मीन्स फर्दर एनालिसिस उसके करवाने के लिए वो जाती है सीधे सीधे गोल्गी बॉडी के पास। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. You said something better? Ma'am, I said yes, ma'am. Okay, nothing. Huh? Okay. Fine. So that is what you have to understand. Then smooth endoplasmic reticulum. It contains enzymes. देखो एंजाइम्स भी प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ऑलरेडी कुछ टाइप के एंजाइम्स होते हैं दैट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ओके। एंड ये लिपिड जो है वो हेल्प करता है मेम्ब्रेन्स को बनाने में, ठीक है। जो हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था लास्ट क्लास, सी लास्ट क्लास वी स्टडीड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फुल ऑफ लिपिड्स है। तो अगर कहीं भी छोटा मोटा डैमेज है या कहीं पर भी जो है वो उसको फिजिकली हार्म हो गया तो उस चीज को रिप्लेस करने का काम जो है वो नया मेम्ब्रेन बना के होगा। तो नया मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ से मिलेगा, जस्ट थ्रू दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब वो उतना पैच बना के उस जगह पर लगा देगा so that it can be healed and it can be taken proper care of. This is what she is doing. Understood this part? Ma'am, lipids का main काम क्या होता है? Okay, fine. Lipids basically देखो मैम मेकिंग membrane, here it is written for making membranes, क्योंकि जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है सिमिलरली इधर भी जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उनका समवॉट सिमिलर स्ट्रक्चर ही है बेटा। तो लिपिड हर जगह नीडेड है, Yes, ma'am. दैट्स व्हाई लिपिड हैज टू बी है। क्लियर बेटा? Okay, ma'am. ओके। Ma'am, the lipid healing का कुछ effect नहीं होता? यू कैन से हीलिंग, यू कैन से अ पैच वर्क, यू कैन से जब जैसे सेल डिवाइड होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो दे यू व्हेन यू विल स्टडी सेल डिवीजन एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि सेल खुद को डिवाइड करने से पहले अपना स्टॉक अच्छे से फिलअप करता है। मतलब अगर उसको ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत है, ज़्यादा वैक्यूल्स की ज़रूरत है, ज़्यादा लाइजोसोम्स की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें बनाने के लिए उसको मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मेम्ब्रेन जो है वो कौन सिंथेसाइज करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Okay, so that is what you have to get the from this particular difference. So structural difference भी है, functional difference भी है। So now see this, whatever endoplasmic reticulum is synthesizing, no matter it is rough, no matter it is smooth, ये दोनों के दोनों जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सब के सब सीधे चले जाते हैं गोल्गी बॉडी के पास। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so that is the thing over here and we will see the structure. See this, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कि मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी ऑन दिस साइड, सी है ये, Yes, ma'am. okay, then it is
मैं आपका वीडियो प्लीज कर रही हूँ। हेलो हेलो। यस मैम। Okay. I think it's having little bit of network issue. यस So, मैम। yeah. So, see this. Uh, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. कैन यू सी बहुत छोटे छोटे डॉट्स उसके सरफेस पर दे. ऑल दीज आर द राइबोसोम्स एंड दीज वन आर कंपैरेटिवली फ्लैट वन. इसकी जो ओपनिंग है अगर आप उसको देखोगे, while this one can you see a bit tubular in nature. Okay, so these are smooth one while these are rough endoplasmic reticulum will be like this. So अगर हम इनको मैं अगर suppose if this is your cell membrane and this is the nucleus, so basically nuclear membrane से ये start होते हैं and they proceed up to the cytocell membrane. यहाँ तक एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर्म करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी necessary for establishing the connection of outside and the inside of the cell. दोनों environment को बैलेंस, मतलब बाहर क्या हो रहा है जो अंदर वाले पार्ट को पता होना चाहिए और अंदर क्या हो रहा है जो बाहर वाले पार्ट को समझ में आना चाहिए. तो ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड डेफिनेटली फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Okay, so this is the thing regarding this particular endoplasmic reticulum. Then it's not changing. हाँ ना, गोल्गी बॉडी भी न्यूक्लियस के साथ होता है तो Not exactly, but Golgi bodies are free in cytoplasm. I mean, see this Golgi apparatus. ठीक है, so these are the Golgi apparatus. ये भी देखो एक कुछ sheets हैं जो highly folded हैं and they are placed like this. So it has two surfaces on it. मैम गोल्गी apparatus और गोल्गी बॉडी एक ही बात है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडी, any body you can use. Okay, so see this. These are also called cisternae. इनको भी हम cisternae ही बोलेंगे. And they have the space in them that is called lumen. And the one which is over here that is called transphase. Actually this should not be phase, it should be phase. Let me correct it. मैम गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बहुत Similar. हाँ, similar. डिस्टिंग्विश कैसे करें अगर साइटोप्लाज्म में आइडेंटिफाई करेंगे? Their connection बेटा, endoplasmic reticulum अगर है तो it will be definitely attached to the nuclear membrane anyhow. While Golgi body you will not see that. Okay, so cisternae वहाँ पे भी है, cisternae यहाँ पर भी है. And can you see some rounded structures are being there? Yes मैम. These are called vesicles. ठीक है. अच्छा, अब क्या हो रहा है एक्चुअली इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. अब क्योंकि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का ये जो फॉर्मेशन है वो देख चुके हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आपको सिस्टम समझा देती हूँ. सी द सिस्टम ओवर हियर. कंसिडर दिस शीट एज सेल. इसको एक सेल मान लो. द ब्लैक बॉर्डर एज योर जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का काम करेगा. ठीक है, सो जस्ट सी टू दिस दैट if this is a cell and you have somewhere here you have a nucleus. यहाँ हम बना देते हैं nucleus over. ठीक है, now this part the white zone is cytoplasm. ठीक है, so see this
that if I talk about endoplasmic reticulum and Golgi body together, तो सब क्या हो रहा है एक्चुअली में इस पर्टिकुलर, वाई दे आर कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्यों उसको हम एक सिस्टम काउंट करते हैं, दैट पार्ट वी विल बी सी. So first let me draw that I have rough endoplasmic reticulum with me. So let me draw that rough endoplasmic reticulum is there somewhere here with lot of okay, this is rough one while this one is, ये एक हाइपोथेटिकल मैं आपको एक वो बता रही हूँ, ठीक है. दिस इज स्मूथ वन. Okay, so this is called smooth one. Now basically ऐसे अलग अलग कुछ नहीं होगा, बस to make you understand I am drawing like this. ठीक है. Then we have Golgi apparatus with me. Let me draw it with. So I have a Golgi apparatus disconnected somewhere here in the cytoplasm. This is how the Golgi apparatus will be seen. ओके, सो अगर ये गोल्गी apparatus है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब किस तरीके से पूरा चैनलिंग होगा, सी टू दिस दैट दिस वन बिकॉज इट हैव राइबोसोम्स इन इट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, वाइल दिस वन विल मेक सम ऑफ द लिपिड्स. ठीक है, ये लिपिड्स बनाएगा. ये सब जो है, ये जो फॉर्मेशन हो रही है, दे आर कंप्लीटली इनएक्टिव and they are completely raw material जैसा preparation. Okay, so raw materials will be prepared, raw protein, raw lipid will be prepared by endoplasmic reticulum. Movement, ये जो प्रोटीन और लिपिड जब सिंथेसाइज हो जाते हैं इन ट्यूब्स के अंदर, तो हाउ दे विल कम आउट. सो इफ आई जस्ट zoom this area, then what you will see is that see, ये इसका अगर एक सिस्टर ने मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ओवर हियर, सो व्हाट विल हैपन दैट द whatever proteins are being formed, they are all will divert to one of the direction and they will just push this membrane and they will form a bulb like structure over here. इससे क्या होगा, जैसे ही मतलब सिंपल आप हम बलून में नहीं, जब स्पेशली फिंगर पोक करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, बस उस तरीके से एक स्ट्रक्चर इसमें से डेवलप होगा एंड दैट विल बी फिल्ड अप विद द प्रोटीन्स वॉट एवर इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय दीज पर्टिकुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इस पर्टिकुलर सिस्टरने से इस तरीके से एक वेसिकल जो है वो बाहर आएगा, जो सारा का सारा प्रोटीन कैरी करेगा. अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा? मैम तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा? यस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है. सारा प्रोटीन फॉर्म हो गया, ऑन वन साइड इट विल गेट एक बड जैसा फॉर्म होगा जिसके अंदर जितना भी प्रोटीन फॉर्म हुआ है वो सब डंप हो जाएगा. अंडरस्टूड दिस? अब क्या है कि जैसे ये चीज हो फॉर्म में पूरी भर जाएगी, ये पर्टिकुलर जो बैग है वो पूरा भर जाएगा, देन व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम हियर. वो इस मेम्ब्रेन से खुद को डिटैच कर देगा. ठीक है, देन वंस इट इज गेटिंग डिटैच्ड, देन इट विल बी सील्ड एंड इट विल बी लाइक दिस कैरिंग ऑल द प्रोटीन इनसाइड इट. ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो सारा का सारा प्रोटीन अपने अंदर कैरी करके रखेगा. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes. ओके, या. सो वंस दिस इज बीइंग फॉर्म्ड, नाउ सी दिस दैट अब देखो यहाँ पर जब ये डिटैचमेंट होता है तो ये जो एरिया है दैट हैज टू बी हील्ड, मतलब उस चीज को फ्यूज होके ठीक हो जाना चाहिए ना. तो दैट एट दैट टाइम इफ रिक्वायर्ड नए मेम्ब्रेन्स को, नए मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, तो वो मेम्ब्रेन के लिए लिपिड्स कहाँ से आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Okay, now similarly from smooth endoplasmic reticulum, whatever lipids are being developed in this, they will also form a bag like structure जिसके अंदर ये सारा लिपिड जो है वो भर जाएगा
and then it will get detached and it will form a new type of structure over here. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay, now see, as we have seen, मैम तो रॉस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हीलिंग के लिए जो लिपिड लगेगा वो स्मूथ whatever, no, abhi still there are some modifications are needed. Okay, so what will happen, क्योंकि only lipid is not there ना, किसी भी membrane में सिर्फ lipid की नीड नहीं है, उसमें कुछ प्रोटीन्स की भी जरूरत होगी, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी. सो स्टिल दिस लिपिड विल गो फॉर द मॉडिफिकेशन. तो अब आपको ये समझना है, देखो ये गोल्गी एपरेटस में, कैन यू सी हियर दैट वी सी दिस, ये लिखा है जो सिस फेस. ये सिस फेस जो है ना बेटा, वो रिसीविंग फेस है. वो क्या करता है, चीजों को रिसीव करता है. अंडरस्टूड दिस पार्ट. वाइल ट्रांस, ट्रांस जो है वो नई चीज को रिलीज आउट करता है, मतलब एक इनलेट है और एक आउटलेट है. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम. ठीक है. तो सिस फेस जो कॉन्केविटी बना रहा है, सी दिस फेस, ठीक है, ये सिस है, ये रिसीव करेगा. ठीक है. तो वॉट एवर दीज वेसिकल्स, ये जो नए बैग्स जो फॉर्म हुए, इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स. ठीक है. सो ये वेसिकल्स जो हैं, दिस इज द वेसिकल फॉर कैरिंग प्रोटीन एंड दिस इज ऑल्सो द वेसिकल कैरिंग लिपिड्स. ये दोनों वेसिकल्स जो हैं, दे विल नेचुरली विल बी रिसीव्ड एट दिस पॉइंट. ये नेचुरली रिसीव हो जाएंगे गोल्गी एपरेटस को. साइटोप्लाज्म में अंदर अपने आप मूव करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, वो इसी के पास जाएंगे. एंड दे विल बी रिसीव्ड, दे विल बी वेलकम्ड बाय दिस टाइप ऑफ, मतलब गोल्गी बॉडी का जो कॉन्केव वाला पार्ट है, उसके अंदर वो उसको रिसीव करता है. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके. सो सी दिस. अब बहुत सिंपल सा फंडा सोचो. ठीक है. आपके बड़े भैया बड़ी दीदी होंगे, या आप खुद, क्योंकि आप है ना क्लास 11th-12th में आ रहे हो, तो व्हाट यू विल बी इमेजिनिंग कि या आपके बड़े भाई या दीदी का भी इमेजिनेशन होगा कि वंस मेरी कॉलेज आ जाए, फिर मुझे एक अच्छी सी बाइक मिल जाए. ठीक है. तो अ वेरी गुड इमेजिनेशन कम्स अप कि मेरी बाइक ऐसी हो वैसी हो. और आपके पापा जो है वो आपको सपोज है ना ई बाइक दिला दे, आपको मजा आएगा? नहीं मजा आएगा. या आपके भैया को सपोज वो पकड़ के वो CD 100 या CD डॉन दिला दे, मजा आएगा भैया को? बिल्कुल भी नहीं आएगा उसको देख के. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर अभी जो ये वेसिकल्स है ना बेटा, ये CD डॉन और ई बाइक टाइप के हैं, जो किसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं सेल में. ठीक है. तो अब इनको करना है मॉडिफाई. अब जो सेल है, ये गोल्गी एपरेटस जो है, इनका मेकओवर करेगा. तो आपके भैया या आप भी क्या करोगे, गैरेज वाले के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे फ्रेंड्स देखे, उससे पहले इसका थोड़ा मेकओवर कर दो, है ना, ताकि मेरा जो वो बोलते हैं ना एक चार्म बना रहे फ्रेंड्स के बीच में. सो दैट इज व्हाट द थिंग, दीज वेसिकल्स विल गो एंड दे विल जस्ट रिसीव्ड बाय दीज गोल्गी एपरेटस. नाउ ये जो गोल्गी एपरेटस है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल जो बोलते हैं ना, एक बोम्बार्डिंग जैसा हो रहा है, मतलब बहुत सारे केमिकल्स की फॉर्मेशंस है, बहुत सारे केमिकल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर ऑलरेडी, देयर इज देयर इन दिस गोल्गी एपरेटस. सो जैसे ही ये चीज़ आएगी, जैसे गैरेज में होता है ना कि भाई ऐसी वाली सीट कर दो, ऐसे वाले पीछे विंग्स लगा दो, मेरे हैंडल को ऐसे कर दो, ऐसा वाला नहीं चाहिए, ऐसा वाला. बस वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि भाई ये प्रोटीन लेकर गया है कि ये प्रोटीन तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं, बढ़िया वाला प्रोटीन बनाते हैं, और इसको लिपिड को भी थोड़ा सा मेक ओवर करते हैं. नाउ ऑल दीज थिंग्स विल बी डन इनसाइड दिस गोल्गी बॉडी. सो ये वेसिकल्स जैसे ही इस जगह पर रिसीव होते हैं बेटा, सपोज दिस वन इज गेटिंग ओवर हियर एंड द ब्लू वन इज ऑल्सो, प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पर जैसे ही आकर फ्यूज होंगे, सो व्हाट विल हैपन, दिस मच जोन विल गेट डाइजेस्टेड. इतना एरिया डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये जो
इसका जो जितना भी ये पार्ट है, जो भी लिक्विड है, जो प्रोटीन्स है, दे विल बी रिलीज इनसाइड दिस पर्टिकुलर गोल्गी बॉडी, ये अंदर रिलीज हो गए. एंड सिमिलरली दिस वन ऑल्सो विल get released inside this. Once this is released, these vesicles will degenerate by themselves, they don't have any use. तो वेसिकल्स बेसिकली क्या है बेटा, वो एक व्हीकल्स की तरह है, ट्रांसपोर्टर्स की तरह है, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया, बाद में उनका सारा काम खत्म. Okay, so once this is done, now all these things when they are releasing inside, so बहुत सारे मेटालिक आयंस होंगे, बहुत सारे और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस गोल्गी बॉडी के अंदर है. अब ये जो प्रोटीन है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ये लिपिड जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी हैविंग लॉट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड देम, ग्लाइकोजन की प्रेजेंस होगी, मेटालिक आयंस है, जो भी जाइलोज, मैनन्स, गैलेक्टन्स, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, जितने भी चीजें हैं वो सब इसके अंदर है. ना ऑल दीज थिंग्स व्हाट दे विल डू दैट, वो अब नई चीज को मॉडिफाई करके बाहर भेजेंगे. सो once this, it will release one more vesicle, एक अलग टाइप का वेसिकल इसमें से बनाएगा, एंड न्यू वेसिकल्स. अब जैसे ही इसके अंदर सारी मॉडिफिकेशंस हो गई, चेंजेस हो गए, स्ट्रक्चरल, केमिकल, व्हाटएवर चेंजेस हैज टू बी डन, वो सारे चेंजेस होने के बाद जो भी फॉर्मेशन हुआ है बेटा, वो सारा इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा. एंड दिस इज द ट्रांस फेज, जहां से गोल्गी बॉडी नई चीजों को बाहर रिलीज कर देगी, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगी कि अब तुम रेडी हो, अब तुम साइटोप्लाज्म में जाओ और आपकी जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर अपना फंक्शन करो. ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी डन. ये चीजें हो गई. ठीक है, वंस दीज वेसिकल्स आर filled they are also will be detached, ये वापस ये भी डिटैच हो जाएंगे, और ये जो वेसिकल है ये भी इसके अंदर से डिटैच हो जाएगा. एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी हील्ड, अब हीलिंग हो जाएगा. अच्छा, अब जो चीज है जो ये रिलीज हुआ, तो देखो प्रोटीन था, हो सकता है वो लिपोप्रोटीन बन गया हो, लिपिड था वो ग्लाइकोलिपिड बन गया हो. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो इस तरीके के मॉडिफिकेशंस होंगे बेटा. बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं, मेटालिक आयंस हैं, तो बहुत सारी चीजें बनती हैं. ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ फॉस्फोरस की प्रेजेंस से फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन हो सकती है अगर लिपिड है. हाँ, अब ये जो है वेरेवर द इनका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, ये सारे के सारे वहां जाकर काम करेंगे, वेरेवर इट विल बी रिक्वायर्ड बाय द सेल. तो ये दोनों तरफ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं बेटा, जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पर भी जाकर काम करते हैं, अंदर किसी मेम्ब्रेन सिस्टम पर नीडेड है वहां पर भी काम करते हैं, सेल को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी देने में काम करते हैं. सो लॉट मेनी थिंग्स आर डन बाय दीज मॉडिफाइड, जो भी ये मॉडिफाई हुआ है वो केमिकल्स. अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो ये तो हमने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है. सिमिलरली लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स जो होंगे वो भी इन्हीं से फॉर्म होते हैं बेटा. लाइजोसोम्स क्या है? Lysosomes in the next class we will take. I think the time is not enough for today's class. So lysosome हम next class में continue करेंगे कि lysosome भी basically आपने शायद 10th में पढ़ा होगा कि suicidal bags हैं. तो they have some special type of enzymes, और enzymes जो हैं वो कहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास थे, तो वो एंजाइम्स भी यहाँ से कुछ मॉडिफाई होने के लिए यहाँ पर गए, एंड देन द लाइजोसोम्स आर फॉर्म. कुछ वेसिकल जो है वो एज अ लाइजोसोम बाहर आएंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ले लूँगी. अंडरस्टूड दिस पार्ट? या पार्डन बेटा? सिस्टर नहीं, ये बेटा जो ये सैक्स बन रहे हैं ना, इनको हम सिस्टर नहीं बोले. अगर फ्लैटेंड है तो सिस्टर नहीं,
और अगर ब्लॉब्ड है मतलब फुला हुआ है तो हम उनको टिब्यूलर्स बोलेंगे। ठीक है, इट इज नथिंग। आप बस एक चीज इमेजिन करो बेटा कि बहुत बड़ा सा हॉलो बैग है, इस तरीके से एक हॉलो बैग है बड़ा सा, ठीक है। और वो अगर फ्लैट मतलब उसके अंदर कुछ भी फिल्ड नहीं है और उसको आप हाईली फोल्ड कर दोगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क बनाएगा। और अगर वो फिल्ड है मतलब वो अच्छे से इन्फ्लेटेड है उसके अंदर जैसे बलून फिल्ड होते हैं और फिर आप उसको फोल्ड करके बना दोगे तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, दैट इज व्हाट। ये कोई हर एक लेयर कोई अलग नहीं है, ये पूरा कंटिन्यूएशन में नेटवर्क है बेटा। ओके मैम। ओके, मैम और सिस फेस और ट्रांस फेस में difference क्या है? cis is called the receiving phase while trans one is called the delivering or giving phase। cis trans का भी हम जो डिस्क्रिप्शन है दैट विल बी गिवन टू यू नेक्स्ट, मैं अभी लूंगी जब, तो आपको एक क्योंकि एक मीडियल फेज भी होता है वो भी मुझे आपको समझाना है। सो सिस मीडियल एंड ट्रांस फेज दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट। मैम एनसीईआरटी में ट्रांस फेस लिखा हुआ है। FAC लिखा है, बहुत सी बुक है लेकिन PHASE was द करेक्ट वन। बट इफ रिलेटेड भी फेस है तो फेस कोई बात नहीं। Ultimately what we have to understand that cis is the one which receives and trans is the one which is given। Is it clear to you? Okay, fine, Simran. Okay.